1 चैप्टर 2 पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। द चर्च लव इन क्राइस्ट। She confesses her deformity and prays to be directed to his flock. Christ directs her to the shepherd's tents, and showing his love to her, gives her gracious promises. The church and Christ congratulate each other. First verse से पढ़ेंगे। The song of songs, which is Solomon's, let him kiss me with the kisses of his mouth, for thy love is better than wine. Because of the savour of thy good ointments, thy name is as ointment poured forth. Therefore do the virgins love thee. Draw me, we will run after thee. The king hath brought me into his chambers. We will be glad and rejoice in thee. We will remember thy love more than wine. The upright love thee. I am black but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon. Look not upon me because I am black, because the sun hath looked upon me. My mother's children were angry with me. They made me the keeper of the vineyards, but mine own vineyard have I not kept. Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon. For why should I be as one that turneth aside by the flocks of thy companions? If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherd's tents. I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaoh's chariots. Thy cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold. We will make thee borders of gold with studs of silver, while the king sitteth at his table. My spikenard sendeth forth the smell thereof. A bundle of myrrh is my well-beloved unto me. He shall lie all night betwixt my breasts. My beloved is unto me as a cluster of camphire in the vineyards of En-Gedi. Behold, thou art fair, my love, behold, thou art fair. Thou hast dove's eyes. Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant. Also our bed is green. The beams of our house are cedar, and our rafters of fir. Chapter 2. Mutual love of Christ and his church, her hope and calling, Christ's care of her, her profession, faith and hope. First verse से पढ़ेंगे। I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. As the lily among thorns, so is my love among the daughters. As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste. He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love. Stay me with flagons. Comfort me with apples, for I am
sick of love. His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me. I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please the voice of my beloved. Behold, he cometh leaping upon the mountains, skipping upon the hills. My beloved is like a roe or a young hart. Behold, he standeth behind our wall. He looketh forth at the windows, shewing himself through the lattice. My beloved spake and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away. For lo, the winter is past, the rain is over and gone, the flowers appear on the earth, the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land. The fig tree putteth forth her green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away, O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs. Let me see thy countenance, let me hear thy voice, for sweet is thy voice, and thy countenance is comely. Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines, for our vines have tender grapes. My beloved is mine, and I am his. He feedeth among the lilies, until the day break, and the shadows flee away. Turn, my beloved, and be thou like a roe or a young hart upon mountain of Bether. श्रेष्ठ गीत पहले अध्याय से पढ़ेंगे। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय पहले वचन से BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। पहला गीत वधु। दूसरा वचन, वह अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? वर 8 वचन से आगे, हे स्त्रियों में सुंदरी,
यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जूती हुई घोड़ी से की है। तेरे गाल केशों की लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरों की लड़ियों के बीच। वधु 11 वचन से, हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरे छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छों के समान है, जो इन गदी की दाख की बारियों में होता है। वर 15 वचन, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरों की सी है। वधु 16 वचन, हे मेरे प्रिय, तो सुंदर और मन भावन है, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर के धरन देवदार है, और हमारी छत की कड़ियाँ सनोवर है। 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। वर 2 वचन से आगे, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। वधु 3 वचन से आगे, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वह मुझे भोज के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता, और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिनियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आप से न उठे, तब तक उसको न उस्काओ न जगाओ। दूसरा गीत। वधु 8 वचन से आगे, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है। देखो, वह पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरीन के समान है। देखो, वह हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, वर, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। 11 वचन से आगे, क्योंकि देख, जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। 12 वचन से आगे, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाख लताएं फूल रही है, वे सुगंध दे रही है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले,
क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। वधू। 16 वचन से आगे, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हरिन के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 23 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स, 2 सैमुअल 5 चैप्टर 6 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 1 वचन से 12 वचन। दूसरा शमूएल की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय। हम 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान को अपने व्यक्तिगत पर्सनल टाइम में पढ़ना है, और ये पढ़ते समय परमेश्वर हमारे साथ बहुत अद्भुत तरीके से बर्ताव करेगा, बहुत अद्भुत तरीके से, जिसके बारे में आपकी सोच भी अभी तक पहुंच नहीं पाई है। ऐसा मजबूत, ऐसा सामर्थ्य के साथ वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलने वाला है। ओके, तो हमने निश्चित इस बात को समझ लेना है कि वचन व्यर्थ नहीं जाएगा अगर हमने अकेले में बैठकर ये वचनों को पढ़ना शुरू कर लिया है तो। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर चाहता है उस मकसद में हमको वो 2 साल के अंत में इतना तराशा हुआ, तैयार किया हुआ, समझाया हुआ, परिपक्व बनाया हुआ ऐसा पाएगा, और वो हमें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर हमें जोर ज़बरदस्ती हमारे साथ इस वचन को पढ़ने के लिए नहीं कहता है। वो कहता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, हमारे अंदर अनुग्रह का आत्मा है जो हमको ये वचनों का प्रेम देता है, इन वचनों के पीछे पीछे दौड़ाता है हमको। ये वचन हमको मीठे लगते हैं, ये वचन को हम अपने गले का हार बना लेते हैं, अपना ये वस्त्र के समान हम इन वचनों को अपने स्वभाव में पहन लेते हैं। ओके, बहुत कुछ होता है जब हम इसे पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़ रहे होते हैं। ऐसा मन परमेश्वर हमको देता है पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के लिए, तो निश्चित हमने इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, अगर तूने हमारे पाप को ना मिटाया होता, दोष लगाने वाले के पास जितना कुछ है हमारे खिलाफ, पिता उसने हमें बंधुआई में डाल डाल कर हमें ख़त्म कर दिया होता। तेरी दया है खुदा कि ये वचन के अंदर से हमने सीखा कि तू हमारा छुड़ाने वाला है, हमें परिपक्व करता है, अपने उद्देश्य में हमें तैयार करता है, हमें तू बहुमूल्य मानता है। ये सारी बातें तेरे वचनों में से हमने सीखी। तेरी प्रतिष्ठा, तेरा परमेश्वर जो महानता है हमारे जीवन के अंदर, तेरे लिए जो हमारी पिता परमेश्वर डेडिकेशन है, उसको और ज्वलंत कर पिता। हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें परमेश्वर पिता ऑर्डरलीनेस में, व्यवस्था जो तेरे आत्मा की व्यवस्था है उसमें हमें लेकर आ, हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आई थैंक यू आबा, I thank you Jesus, I thank you Holy Spirit, and I love you. I love you Jesus, I love you Holy Spirit, I love you Abba Father God, I love you so much. धन्यवाद पवित्र आत्मा, ये सारी बातों के बीच में तू जो काम हमारे जीवन में कर रहा है इसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू आबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में हमारा धन्यवाद बलिदान स्वीकारने के हम तुझसे विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।